Good morning, class. So, today we'll be completing this chapter, excretion and osmoregulation, that we were doing since 2 or 3 classes. So today we'll be completing our human physiology completely, as only this was the last chapter left. Muscular chapter, the muscles chapter, is being removed from the syllabus by the CBSE. So, this is the last chapter of human physiology, and from the next class, we'll be starting with a new unit. So, now the physiology of excretion. How the excretion works, if we talk it in terms of physiology. What is the physiology? How the urine formation occurs, and then that urine formation, how it is leading to the excretion of that urine which is being formed. So for that, let's discuss this. The function of nephron, which is the formation of urine. So I told you the difference between afferent and efferent arteriole in the previous class. What is the difference? That the afferent arteriole, which is receiving the blood, it is having a larger diameter, and the one from where the whatever the things are being have to be excreted out are being discarded is of lesser diameter. So that is to maintain or increase the pressure, and जब pressure से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो it will be helpful in the process of excretion. सबसे पहले glomerular filtration होता है. फर्स्ट स्टेप इज glomerular filtration, क्योंकि पहला जो पार्ट है बाउमन्स कैप्सूल है, एंड देन उसमें उसका जो एक पार्ट है दैट इज़ ग्लोमेरुलस, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम होता है. जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िल्टर हो सकती हैं थ्रू मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तो उनको वहाँ फ़िल्टर कर लिया जाता है, और बाकी चीज़ें जो स्टिल लेफ्ट आउट होती हैं देन दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. तो फिल्ट्रेशन का काम हो गया ग्लोमेरुलस में. अब जो चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमारी बॉडी को चाहिए बट दे आर स्टिल बीइंग एक्सक्रीटेड आउट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलस, तो वहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है. ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. ट्यूब्यूल में कौन से आती हैं चीज़ें? 3 चीज़ें. द पीसीटी, proximal convoluted tubule, then comes the loop of Henle, and the DCT, the distal convoluted tubule. And the function of tubular reabsorption, it is that it removes the useful solutes from the filtrate. filter में जो भी useful चीज़ें आ गई हैं उनको हटाता है, and then it returns them back to the blood, और फिर वहाँ से वो फिर से अपनी फंक्शनिंग जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट करती है. देन थर्ड स्टेप फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, फिर आता है सिक्रीशन. तो इसमें क्या होता है? सिक्रीशन में जो भी एडिशनल वेस्ट होता है ब्लड में वो यहाँ पे फिल्ट्रेट के साथ मिक्स होता है, और वो भी बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो ये 3 डिफरेंट स्टेप्स कंबाइन होते हैं, देन एक कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है. इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने वाला होता है उसको भी हमें कंजर्व करना है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी से वाटर विल बी released out in a very large amount, so that is also problematic for us. So that's why we'll have to do this, the conservation of water. Now the what is the efferent arteriole. यहाँ से क्या क्या चीज़ें पास ऑन होती हैं? सो रीनल कार्पस्कलस में आता है, जिसमें कि ग्लोमेरुलस प्लस द बाउमेंस कैप्सूल दोनों कंबाइन हो जाते हैं. फिर यहाँ से जो 90% फिल्ट्रेट है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, एंड वो आता है इन कैपिलरीज में, इन ट्यूब्यूलर फॉर्म्स में. यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, एंड ये लीड करती हैं रीनल वेन को, एंड देन यहाँ पे फाइनली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का इनटू द ब्लड, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है सिर्फ वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, और जो भी हमारी बॉडी को वाटर अप्रोप्रिएट अमाउंट में चाहिए वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन द लूप ऑफ हेनले. Now this is how the process of the urine formation occurs, and urine अब यहाँ से blood out of bladder हमारे body से pass out हो जाती है. This is process which is called as micturition. Now the physiology of excretion again in a diagrammatic representation. कैसे ये filtration होता है? Lumen, the lumen is the empty space which is vacant, and this is for receiving whatever the filtrate are entering it. यहाँ पे filtration के बाद filtrate enter किया, then it passes through the cells. यहाँ पे paracellular path होता है, and it consists of paracellular as well as the transcellular path. Paracellular means 2 cells
के बीच में स्पेस है वहाँ पे मूव ऑन करेगा, बट ट्रांससेल्युलर कोई स्पेस नहीं है एंड ये थ्रू द सेल्स ही पास करेगा. देन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन दोनों होता है. एटीपी इन्वॉल्व होगी, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिव काइंड ऑफ डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का कंजर्वेशन भी होता है. बाकी चीज़ें जो कि इन द फ्लो ऑफ बल्क मूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, वो जाके ब्लड स्ट्रीम में वापस से डिसॉल्व हो जाती हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. और जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, जो वेस्ट है, वो वापस से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए प्रिपेयर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो अगेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साइट कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन मालपीजियन बॉडी में. नाउ दिस इज़ एफ्रंट, इसका डायमीटर कम हुआ, ये एफ्रंट बन गई. ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डायमीटर ऑफ द एफ्रंट एंड एफ्रंट आर्टेरियोल. एंड यहाँ से बाउमेंस कैप्सूल भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो ऑल दीज प्रेशर कंबाइन टुगेदर और तभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ पाता है. सो सबसे पहले प्रिंसिपल. What is the principle of the ultrafiltration? So it is a physical process, that means it is not involving any chemicals in it and it is occurring physically. The diameter, I told you, efferent का it is bigger and efferent arteriole it is lesser, इसीलिए pressure create होता है glomerulus में. फिर सबसे पहले कौन सा प्रेशर होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो ये कौन सा प्रेशर होता है? इज़ द ब्लड प्रेशर, जिसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दे आर ऑफ अबाउट 55 mm/Hg. तो mm/Hg किस चीज़ की यूनिट है? प्रेशर मेजर करने की. सो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 55 mm/Hg होता है. फिर दूसरा कौन सा प्रेशर है? द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये भी ब्लड में ही मेंटेन होता है और ये होता है अबाउट 30 mm/Hg एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो हमारा ब्लड दो चीज़ों का बना होता है, फर्स्ट इज़ द फ्लूइड पार्ट एंड द प्रोटीन्स. तो ये जो प्रेशर होता है ये किस चीज़ से डेवलप होता है? कोलॉइड जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द plasma proteins and it is making up the colloidal osmotic pressure. It is of about 30 mm/Hg और ये अपोज करता है, तो ये अगेंस्ट वर्क करता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के. तो अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 है और इसके अगेंस्ट कोई चीज़ 30 mm की वर्क करेगी, तो अब कितना प्रेशर बचा हमारा? वी हैव नाउ अ नेट ऑफ 25 mm/Hg प्रेशर लेफ्ट. तो इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर अगेंस्ट लग रहा है, इसीलिए फ्लो तो होगा बट विल बी इन अ लेसर अमाउंट. अगर ये अपोजिशन के लिए कोई फोर्स नहीं होता तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लो से मूव करता, बट एज वी आर हैविंग अ प्रेशर विच इज़ वर्किंग एंटागोनिस्टिकली, सो दैट्स व्हाई नाउ वी हैव अ लेसर प्रेशर इफ वी कंबाइन इट टू द 55 mm/Hg. Then third, the capsular or the filtrate hydrostatic pressure. So it is the pressure of the glomerular capsule and it is caused by the filtrate ट्रैक्यूरीज. जो भी फिल्ट्रेट में ट्रैक्यूरीज मतलब दीज आर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो वायमन कैप्सूल में प्रेजेंट है, ये उनके वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड इट इज़ अबाउट 15 mm/Hg. और ये भी जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको अपोज करता है. तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर अपोज कर रहा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को? इट इज़ ऑफ अबाउट 45 mm/Hg. और तो एक्सर्ट कितना होगा? सिर्फ 10 mm/Hg, क्योंकि 55 में से 45 अपोज में लग रहा है, अगेंस्ट लग रहा है, तो सिर्फ 10 mm. तो दिस इज़ क्लियर इन दिस कैलकुलेशन कि जो नेट या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है विच इज़ EFP, effective filtration pressure EFP is equal to the glomerular hydrostatic pressure minus the colloidal osmotic pressure प्लस द कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इन दोनों कंबाइन किया और इससे माइनस करके ये जो आएगा वो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा. द एफ्रेंट आर्टेरियोल जो होती है इट ब्रिंग्स इन ब्लड एट रेट ऑफ 625 ml/minute. मतलब हर मिनट पे 625 ml ऑफ ब्लड जो एफ्रेंट आर्टेरियोल है वो ग्लोमेरुलस में लाती है. एंड इसका कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर होता है? ओनली 1/5. दैट्स वाई द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कितना हुआ? 1/5 ऑफ 625 विच इज़ 125 ml/minute और अबाउट 180 लीटर्स पर डे. अगर हम पर डे के बारे में बात करें तो इट विल बी 180 लीटर्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट, तो ये 125 ml/minute प्योरीफिकेशन जो हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है. बट अगर वी कंसिडर इट इन द टर्म्स ऑफ डेज तो ये it will be on of about 180 liters per day. So this rate of filtration of
फॉर्मेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं हम, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। दिस इज द अमाउंट और दिस इज द रेट एट विच जो फिल्ट्रेट बन रहा है। सो दिस इज द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब इसका प्रोसेस क्या है, हाउ दिस इज बीइंग मेड। जो एपिथेलियल सेल्स हैं, व्हाट आर द एपिथेलियल सेल्स, प्लांट्स और in the case of plants and animals, in both the cases जो epithelial cells हैं they are present at the surface, ये covering होती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो एपिथेलियल सेल्स मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्किन। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर मीन्स जब भी हम किसी ब्लड लेयर की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग इट अबाउट द विसरल लेयर। सो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं विसरल लेयर के बाउमेंस कैप्सूल में दे आर कॉल्ड एज द पोडोसाइट्स। तो हमने पोडोसाइट्स के बारे में पिछले क्लासेस में बात की है। जो बॉडी होती है पोडोसाइट्स की वो किस पे रेस्ट कर रही होती है, एक फीट लाइक प्रोसेस जो हम पेडिसिल्स कहते हैं। एंड पोडो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर द फीट्स, तो इसीलिए इसका नाम जो है इन सेल्स का वो पोडोसाइट्स पड़ गया। और ये एक फीट लाइक प्रोसेस के ऊपर प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज द पेडिसिल्स। जो इंडिविजुअल लेग्स होते हैं दे हैव सम फुट प्रोसेसेस, फुट लाइक प्रोसेसेस उनसे इमर्ज होती हैं। और जो गैप्स या स्लिट प्रेजेंट होती है इन फुट प्रोसेस के बीच में, इट इज़ द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द पोर्स इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द परमिएबल बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो स्लिट है ये वर्क करती हैं एज अ फिल्ट्रेट, जैसे कि इन द केस ऑफ व्हेन वी आर पोरिंग टी इन अ कप तो वी यूज सीव। तो ये सीव का क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो हमें नहीं चाहिए हमारे कप्स में उसको वो डिस्कार्ड करने का काम करती है। सो सेम वे ये जो स्लिट्स हैं ये कॉन्टैक्ट मेंटेन करती हैं एंडोथेलियम लेयर्स ब्लड कैपिलरीज की और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में। तो ये फिल्ट्रेशन का काम करेगी। और अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये फैसिलिटेट करता है कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और फ्लूइड ईजिली मूव कर जाता है। बिकॉज ये स्लिट जो है दे आर वेरी थिन और वेरी लेसर डायमीटर, तो ये ओनली फ्लूइड को अलाउ करती है अपने अंदर से मूव करने के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर जो कि मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफ्रेंट एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल, अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड एंड इस फिल्ट्रेशन पाथवे जो होता है इट इनटू द यूरिनरी स्पेस, ये कहाँ पे लीड करता है इसको, यूरिनरी स्पेस ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल। ये 1/5 जो ब्लड फिल्टर हो रहा है हमारा ये यूरिनरी स्पेस में चला जाता है बाउमेंस कैप्सूल की। अब जो फाइनल प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड एज द GFR, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, विच कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। अब इसमें सब कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड आ गए, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे निकला वो उसमें सब कुछ प्रेजेंट है। ग्लूकोज भी प्रेजेंट है जो कि ब्लड में होता है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। बट ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं प्रेजेंट, क्योंकि ये सब दे आर ऑफ अ लिटिल मोर मोलिकुलर वेट और ये ट्रैप हो जाते हैं। दैट्स वाई जो अब ये प्रोडक्ट आएगा वो कहलाएगा द डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा। डी प्रोटीनाइज मतलब इसमें से प्रोटीन निकल चुका है, बिकॉज जो ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं इस फिल्ट्रेट में, इसलिए हम इसको टर्म देंगे डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा बिकॉज इट हैज़ नो मोर प्रोटीन्स लेफ्ट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, किस पार्ट में किस चीज़ का और कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट विल बी टॉकिंग इन दिस स्लाइड। सो the physiology of excretion which is selective reabsorption. The PCT which is the proximal convoluted tubule, वहाँ पे reabsorption होता है वाटर का, आयंस का, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। ये एक पूरा नेफ्रॉन है, दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ किडनी विच इज़ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन कितने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो मैनी पार्ट्स। अब ये किस पार्ट्स में कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है विल बी सीइंग दैट इन द पिक्चर। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, आयंस का और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं सबका यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ये रीनल टिब्यूल्स हैं, ये फर्दर ऑन मूव ऑन करते हैं, ये आ गया हमारा रीनल कार्पसिकल। एंड यहाँ पे जो होता है मेन प्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेट होता है। और फिल्ट्रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द फिल्ट्रेशन थ्रू द स्लिट्स। और जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लूपर फैनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, फर्दर जो भी पीसीटी में वाटर बच गया है रीअब्जॉर्ब होने से वो फर्दर आके यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है, एज वेल एज सोडियम और क्लोराइड आयंस भी यहाँ पे फिल्ट्रेट होते हैं। तो इसमें लूपोफेनले दो लिम्स में डिवाइडेड होता है, एक असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग लिम। तो जो डिसेंडिंग लिम है वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस का है वो एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम में।
दिस इज़ द दिस इज़ द DCT, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे सिक्रीशन होता है आयंस का, एसिड्स, ड्रग्स, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं चाहिए उनका यहाँ पे सिक्रीशन हो जाता है. और जो डिफरेंट रीअब्जॉर्प्शन और भी चीज़ों का होता है, जैसे वाटर का यहाँ पर भी होता है. वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें 3 जगह पे इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट बिल्कुल भी ज़्यादा अमाउंट में वाटर अगर हमारी बॉडी से निकल गया तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारी हर सेल को वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. दैट वाई वी कैन नॉट बेयर दैट लॉस. सो द वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, यहाँ पर होगा अंडर हार्मोनल कंट्रोल. यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स वर्क करेंगे, लाइक वासोप्रेसिन, वी टॉक्ड अबाउट इट, कि वो कैसे रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर के ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन. सो ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होगा, स्टिल वाटर का भी होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब यहाँ पे होगा. अब यहाँ पे कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है. जो भी चीज़ अब लेफ्ट आउट है, जो अब रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाई है, वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से मिक्सचरेशन में निकल जाएगी. सो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लो चार्ट कि कैसे ये सब चीज़ें किस प्रोसेस से होती हैं और क्या क्या यहाँ पे एब्जॉर्ब और एलिमिनेट हो रहा है. तो PCT में दोनों तरह का रीअब्जॉर्प्शन होता है. एक्टिव बी विच इज़ इन्वॉल्विंग ATP, द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एज वेल एज द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन जो अगेंस्ट मूव नहीं करता है कंसनट्रेशन के ग्रेडियंट के, बट इट मूव्स अलॉन्ग विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करता है, तो दैट इज़ पैसिव. तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या आ जाता है, किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस एंड द फॉस्फेट आयंस. फिर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में होता है वाटर का, यूरिया का और क्लोराइड आयंस का. फिर डिसेंडिंग लिमिट, दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन कि ये सब किन चीज़ों का कहाँ पर और किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो नाउ द साइट, जो PCT और DCT होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दे आर पार्शली इन द कलेक्टिंग डक्ट. तो प्रिंसिपल क्या है इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन का, सम सब्सटेंसेज जो कि एस्केप कर गए अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मतलब वो हमारी ब्लड में अभी भी प्रेजेंट हैं बट उनका फिल्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो दे आर टेकन टू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज और ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेट में चले जाते हैं. देन द प्रोसेस, जैसे कि कौन सी चीज़ें, अमोनिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस, ड्रग्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ये सब जो हैं ये इसके पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सक्रीशन में आते हैं, क्योंकि ये कभी कभी जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का, उसको एस्केप कर जाते हैं, तो उसके लिए हम इनको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं. सो फॉर एवरी पोटेशियम या हाइड्रोजन आयन के लिए 1 सोडियम आयन इज़ रीएब्जॉर्ब्ड. तो अगर एक पोटेशियम आयन बाहर जाएगा तो एक सोडियम आयन अंदर आएगा. दैट इज़ द मैकेनिज्म हाउ इट इज़ डन. अगर ऐसा नहीं होता है, पोटेशियम बाहर चला जाएगा और सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा और ये इम्बैलेंस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द किडनीज. सो हाइड्रोजन, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों मोनोपॉजिटिव मोनोवैलेंट एटम्स हैं. तो अगर हम एक एटम को बाहर निकालेंगे, एक मोनोवैलेंट, मतलब अब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उस जगह पे जहाँ से हमने पोटेशियम को निकाला, क्योंकि वो मोनोवैलेंट था. पोटेशियम जो था वो प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा था. सो दैट अगर हम इसको बाहर निकालना है तो हमें एक मोनोवैलेंट को अंदर भी लाना पड़ेगा. तो उसकी स्पेस कौन फिल कर सकता है, सोडियम. फिर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बैलेंस मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस, एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन. सो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है विच इज़ द कंसनट्रेटेड यूरिन, वो कंटेन करता है 50% यूरिया एंड दैट इज़ फाउंड इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ ट्यूब्यूलर secretion as well as the urine formation occurs और यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होगा फाइनली. सो दिस इज़ द डायग्राम, कैसे जी सोडियम पोटेशियम अंदर आता है और पोटेशियम विल बी मूव्ड आउट और सोडियम अंदर जाएगा थ्रू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लेफ्ट आउट हमें बाहर निकालनी है उनका सिक्रेशन हो जाएगा. सो इसमें क्या क्या वर्क करता है, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है जिसमें कि पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं. ये ज़्यादातर अमोनिया के लिए होता है यूज़ और क्रेटिनिन के लिए. ये असेंडिंग लूप है नेफ्रॉन का और ये कलेक्टिंग डक्ट है. तो ये सब जो पार्ट्स मिलके दे परफॉर्म द ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस. सो this is not in your syllabus. This is another type of glomerular apparatus which is the juxta
it is juxta, I think, so it is not in your syllabus, so we can leave it. This is also not very much relatable. यहाँ पे different hormones का कैसे work होता है, this is explained. Angiotensinogen angiotensin में convert होता है by the ACE. ACE is an enzyme which is used to convert angiotensinogen into angiotensin. So all this work together and ये maintain करता है हमारा angiotensin aldosterone system, which is not in your syllabus, so you can skip it. If there is any doubt, then you can ask later on. Now osmoregulation. So fluid balance और electrolyte balance में क्या difference है? Fluid balance होता है जो it is controlled from the posterior pituitary, और जब amount of water जो है हमारी बॉडी में लेस होता है तो जो ADH होता है उसका सिक्रीशन हमारी बॉडी में अपने आप बढ़ जाता है. एंड ADH इज़ द हार्मोन जो हमारी बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूज़फुल है सबसे ज़्यादा. सो ये रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा वाटर का बाय द प्रोसेस ऑफ फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन DCT से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से. आप इससे क्या होगा, देयर बाय जो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन का. तो हमारी बॉडी से अब जो यूरिन निकलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेटेड होगी. दैट मीन्स इसमें वाटर का जो अमाउंट कंसनट्रेशन है वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. अगर किसी चीज़ में वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म बोलते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इन द फ्लूइड बैलेंस ओनली, जब वाटर इनटेक होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर ADH जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तो हमें अब ADH की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो ADH का सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगा. सो इससे क्या होगा, DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो लेस परमिएबल हो जाएंगे वाटर के लिए, और जो अब हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होगा यूरिन का वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा और उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा. Then the electrolyte balance, it is controlled by another hormone which is aldosterone. It is released from the adrenal cortex. So you have to learn कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, उसका कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल है. So concentration of potassium ions, sodium ions, chloride ions, calcium ions. It is written calcium positive. It is not monovalent, it is divalent, as well as magnesium is also divalent. And the bicarbonate ions, इन सब का कंसनट्रेशन हो जा होता है. इट इज़ रेगुलेटेड बाय द इंक्रीज्ड और डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन इन द PCT. तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है और वाटर के लिए DCT और कलेक्टिंग डक्ट. फिर जो कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन है वो मेंटेन होता है एक हार्मोन से विच इज़ कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. कैल्सिटोनिन जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का जो कंसनट्रेशन है अमाउंट है वो बढ़ाता है और पैराथॉर्मोन उसको कम करता है. सो एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, प्रिसाइसली द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय एक्सक्रीटिंग आउट द पोटेशियम इन एक्सचेंज. तो जब भी हम यह सोडियम का एक्सचेंज और पोटेशियम का करते हैं तो इन दोनों के लिए हमेशा हमें एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनका एक्सचेंज करते हैं. डायरेक्ट सिक्रीशन या रिलीज़ नहीं करते हैं. एक को अंदर अगर हमें भेजना है तो दूसरे को बाहर निकालना पड़ेगा. ये कहाँ पर होता है, DCT में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर सकते हैं. सो स्वेट ग्लैंड्स जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में वो भी एज अ वर्क करते हैं, एज अ रोल प्ले करते हैं इन द एक्सक्रीशन. ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उनको रिलीज आउट करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम हाउ इट वर्क्स. ये डिफरेंट लेयर्स हैं स्किन की, और फाइनली यहाँ पे जो है हमारा सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो यहाँ पे स्वेट को एलिमिनेट करती हैं हमारे थ्रू द पोर्स. माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्किन में और वो हेल्प करते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है और वाटर है उनको एक्सक्रीट आउट करने में. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो जो हेनले लूप है, द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो जो फ्लो फिल्ट्रेट होता है दोनों लिम्स में, दोनों लिम्स असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम में लूप ऑफ हेनले की, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो असेंडिंग क्या करती है, वो नीचे से ऊपर ले जाती है और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे लाती है. और इससे क्या होता है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है. So the flow of blood in दोनों limbs से of the vasa recta is also in a counter current pattern.
तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है, द रिलेशन बिटवीन द हेनलेज लूप एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम, वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टूवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम दैट इज फ्रॉम 300 milliosmolar in the cortex to about 1200 milliosmolar in the inner medulla. So now I'll explain this कि क्या हो रहा है। ये जो हेनले लूप और वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों में काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है दिस इज ड्यू टू द ऑपोजिट फ्लो, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स यहाँ प्रेजेंट हैं जो कि ऑपोजिट फ्लो में डायरेक्शन में काम कर रही हैं। तो ये हेल्प क्या करता है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या होगा, ये मेंटेन करेगा जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेड्यूला, जो किडनी का मेड्यूला और कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पे मेंटेन रहे, ना ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो जो इनर मेड्यूला है वहाँ पे 300 इट इज़ वेरी लेस, एंड इसको हमें 1200 मिली ऑस्मोलेटर तक मूव करना है इनर मेड्यूला में। सो वी आर यूजिंग दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर दिस, और इससे जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मेंटेन है फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वेरियस सबस्ट्रेट जो कि मूव कर रहे हैं, सो ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग दैट। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द कंप्लीट नेफ्रॉन, एंड दिस ग्रेडियंट जो मेंटेन होगा ड्यू टू द डिफरेंसेस, ये इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। सो सोडियम क्लोराइड और यूरिया ज़्यादातर काउंटर करंट मैकेनिज्म में को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो असेंडिंग लूप मीन्स जो नीचे से ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, जो लिम लूप ऑफ हेनले की, वहाँ से NaCl ट्रांसपोर्ट होगा विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो NaCl असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव कर रहा है और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लूप से, तो ये काउंटर करंट हो गया कि एक तरफ से असेंडिंग और दूसरी तरफ से डिसेंडिंग, तो ये आपस में दे विल बी वर्किंग ऑपोजिट। फिर NaCl जो है इट इज़ रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। ये डिसेंडिंग लिम से वासा रेक्टा की गया और अब ये रिटर्न कैसे होगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, थ्रू द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। सिमिलरली जो यूरिया का स्मॉल अमाउंट है इट इज़ ऑल्सो एंटरिंग द थिन सेगमेंट। अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिप ऑफ हेनलेस लूप में एंटर किया, फिर ये ट्रांसपोर्ट बैक किया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बाय द कलेक्टिंग डक्ट और द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज दे फैसिलिटेट। अब वी कैन सी कि कैसे दोनों का ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है असेंडिंग लूप से एंड डिसेंडिंग लूप से। both vasa recta and the loop of Henle are working in this, and this special arrangement जो है Henle और vasa recta का, ये मेंटेन करते हैं इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म, सो दैट जो ऑस्मोलैरिटी है हमारी बॉडी में मेडुलरी एज वेल एज कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी वो मेंटेन रहे। And the mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, और the presence of such interstitial gradient किस में हेल्प करती है, easy passage of water। अगर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता रहेगा तो वाटर जो है वो ईजिली मूव करता रहेगा फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और इससे क्या होगा जो हमारी यूरिन है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होगी, ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं रिलीज होगा। So human kidneys can produce the urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। So जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसमें 4 टाइम ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और वो धीरे धीरे रीअब्जॉर्ब होते होते बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि PCT DCT लूप ऑफ हेनले में हो रही हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का हर जगह पे, और फाइनली जब वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है तो उसमें 4 टाइम अमाउंट जो है वाटर का वो कम हो जाता है, और यूरिन रिलीज होती है इन 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। Now there are some disorders which are related to the kidney or which can lead to renal failure. So the failure of kidneys to adequately filter toxins and waste products from the blood. इस क्या क्या reasons हैं failure of kidney के? The decrease in the filtration, glomerular filtration rate अगर हमारी किडनीज में कम हो जाएगा GFR, तो हमारी जो किडनीज हैं दे विल बी एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग फेल्ड। एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, जो एबनॉर्मल फ्लूइड लेवल मेंटेन होगा हमारी बॉडी में, लॉन्ग टर्म किडनी प्रॉब्लम्स हुए वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी प्रोड्यूस हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता रहा थ्रू द यूरिन, और
प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन लॉस होता रहा, अगर प्रोटीन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है हमारी बॉडी में तो दिस कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन द किडनीज. So the types of renal failure, one is the acute kidney injury which is not very harmful, and the second one is chronic failure, renal failure. So ये जो होता है it is rapidly progressive and it results in the loss of renal function. जो हमारी किडनी का फंक्शन है वो स्लोली ख़त्म हो जाता है, and this is called as oligouria. एंड ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है एंड इट डेवलप स्लोली एंड इनिशियली शो फ्यू सिम्टम्स. तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत स्लोली दिखते हैं, दैट्स वाई इस पर लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते, एंड देन इट कैन बी ये फिर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है एंड इट कैन इवन लीड टू द डेथ अगर बॉडी में जो आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस नहीं परफॉर्म होगा. सो व्हाट इज़ डायलिसिस? दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे डायलिसिस होता है. सो ब्लड जो होता है वो ड्रेन किया जाता है, इट इज़ बीइंग ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी एंड इट इज़ पम्प्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट. तो विच इज़ द डायलिसिस यूनिट? यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे डायलिसिस यूनिट है. ये पूरे एक सोल्यूशंस मेंटेन होते हैं, डायलिसिस सोल्यूशन है, ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर एंड कॉल्ड एज द डायलिसिस यूनिट. और देन व्हाट हैपेंस, जो इसमें एक एंटी कोगुलेंट ऐड किया जाता है. व्हाट इज़ एंटी कोगुलेंट? जो कि हमारी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी देन इट विल इमीडिएटली लीड टू द डेथ, क्योंकि ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा और हार्ट में ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाएगा. सो इसलिए हेपारिन है विच इज़ एन एंटी कोगुलेंट, उसको हमारे ब्लड में ऐड किया जाता है. फिर द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब. तो एक इस यूनिट में जो एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब प्रेजेंट होता है विच इज़ सराउंडेड बाय अ फ्लूइड. इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड. एंड इट इज़ हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन. इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं जो कि प्लाज्मा में होती हैं, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता. नाउ द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होता है हमारी ट्यूब का, वो अलाउ करता है पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो होगे, वो कम जिस तरफ कम है वहाँ पे फ्लो होगा, और नाइट्रोजन वेज एब्सेंट है इसलिए ये सब्सटेंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट कॉज एनी हार्म. नाउ दिस क्लियर ब्लड जो होता है वो पंप बैक किया जाता है बॉडी में थ्रू अ वेन, एंड इट इज़ ऑल्सो एडेड विद एंटी हेपेरिन. एंटी हेपेरिन मीन्स जो हमने एंटी कोगुलेंट जो ऑलरेडी ऐड किया था उसके अगेंस्ट ये काम करेगा और हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड है वो नॉर्मल कर देगा. एंड दिस इज़ हाउ द कंप्लीट डायलिसिस वर्क्स. ब्लड जो है हमारी बॉडी से वो निकाल के उसे प्योरीफाई करके उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करके ब्लड फिर से प्योरीफाइड फॉर्म में एंटी हेपेरिन डाल के वी कैन मेक आवर किडनी टू वर्क अगेन एफिशिएंटली. बट this is not achievable in a very rare cases. It is successful after some span of time. जो blood है that again अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो वो फिर से प्रॉब्लम होने लगेगी ब्लड में, एंड अगेन ये डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ता है. इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड in the next class we will be starting with the next unit, maybe cell division.